Hey Balko, this is your biology teacher Ms. Poonam and I welcome you all in your biology class. So today we are again continuing the same chapter number 3, human reproduction from your NCERT book class 12th, and we were talking about female, right? In our previous lecture we have completed our menstrual cycle, and what we have talked in this particular chapter, we have talked about the male and female reproductive system along with their gametogenesis, that is spermatogenesis and oogenesis, and along with the oogenesis we have also talked about the menstrual cycle. Okay, now we have gametes, now female or male gamete. Now why they have been produced, क्यों बने हैं? For the process of fertilization, right? To continue the species, to continue the generation of human beings. ह्यूमन बींग्स की जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये चीज बनी है, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा? फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्या होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन is a fusion of gamete, right? Fusion of a haploid sperm with the haploid egg, right? Yeah, ovum, forming a diploid zygote. Diploid zygote. Okay, this is what? This is called the fertilization, the process of fertilization. Fertilization is also known as syngamy. We have talked about this lots of time. Okay, so syngamy is what? The fusion of haploid sperm with the haploid gag forming a diploid zygote. Zygote मिल गया आपको, ठीक है? Where is the site of fertilization? Where is the site of fertilization? What is the site of fertilization? As you all know that human beings are viviparous. The fertilization is internal fertilization, right? So viviparous क्या है? Body जो baby है, जो fetus है, जो embryo है, वो develop कहाँ हो रहा है? Mother की body के अंदर, womb में, ठीक है? So the site of fertilization must be present inside the body of female, right? So where particular position, where at the particular position this fertilization process is taking place? That position is called as ampulla. इसको आप कहते हैं बच्चों ampulla. Ampulla कहाँ होती है? Of oviduct. Oviduct का पार्ट है, and oviduct is what? Fallopian tube. Fallopian tube, ठीक है? उसी को आप oviduct कहते हैं. उसके ampulla वाले पार्ट में जो क्या होता है? स्वलन पार्ट था आपका, एम्प्यूला आपका निकला था, अभी दोबारा बात करेंगे. वहां पर आपका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? एम्प्यूला, ठीक है? ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. वन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज व्हाट? द गैमीट ट्रांसफर, ठीक है? गैमीट ट्रांसफर हमने फर्स्ट चैप्टर में इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा था. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपके दो फर्दर क्या थे? फेजेस थे, गैमीट फॉर्मेशन and gamete transfer. So now we will be talking about that particular phase of pre-fertilization phase in fertilization itself. इसी में हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है? तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी आपकी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, ये नीडफुल है, तो आप वो क्या उनको एक पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले आपको चाहिए ओवा. सो देयर इज अ नीड ऑफ अराइवल ऑफ एन ओवम at the site of fertilization. फर्टिलाइजेशन के साइट पे आना जरूरी है, क्योंकि ओवा का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? ओवरी. एम्प्यूला इज अनदर पोजीशन, आपका फैलोपियन ट्यूब में प्लेस्ड है एम्प्यूला, तो वहां तक आना, दैट इज अराइवल ऑफ ओवम. द सेकेंड थिंग, अब हमें क्या चाहिए? स्पर्म या फिर मेल गैमीट भी चाहिए. फीमेल गैमीट तो आ चुका है,
So that is what? Insemination. Right? Insemination. Third one is what? The motility. Motility of sperm. स्पर्म्स की मोटिलिटी, कैसे स्पर्म कहाँ जाएंगे, आपके एम्प्यूला तक पहुंचेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. एंड देन कैपेसिटेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म का कैपेसिटेशन मतलब कैपेबल बनाना उनको, स्पर्म को फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बनाती है. आपकी फीमेल बॉडी ही उसमें हेल्प करती है कैपेसिटेशन में. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर. एंड आफ्टर कैपेसिटेशन योर स्पर्म इज रेडी, ओवम इज रेडी एट द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट विल हैपन? फ्यूजन ऑफ gametes. Okay, so these are the points which we are going to discuss in this particular topic of fertilization. Let's take the arrival of ovum first. Let me see, यहीं पे बना लेते हैं, चलो, है ना. फिर उसके बाद में रब करते हैं, जिसमें बाद में इंसेमिनेशन की बात करेंगे. सो लेट्स सी, इंसेमिनेशन की बात भी यहीं कर लेंगे. चलो यहाँ लिखते हैं ओवम. This is what the female reproductive system, right? ऐसे ही था. सादा बना दिया. The same is on this side also, right? There's no need to draw again and again. कि ये आपका है vagina. This is what the vagina, right? So what we are talking about, arrival of ovum. Ovum बच्चों प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है ovum का? यहाँ. Ovum are produced in ovary, right here. This part is what? The infundibulum. This one swollen part is ampulla, and this is isthmus, right? These are the parts of fallopian tube. These are fimbriae, right? Finger-like projections are what? Fimbriae. ठीक है, fimbriae जो कि ओपन हो रहे हैं इंफंडिबुलम पार्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों फॉलिकल बनी है, जो ओवम बना है, हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसमें क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, 14th डे पे यहाँ से रप्चर होके आपका क्या है? ओवा निकल रहा है. नाउ दिस फिम्ब्रे विल हेल्प टू लोकेट दिस फॉलिकल इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, इसको गाइड करेंगे एंटर करने के लिए. ठीक है, तो आपका क्या होगा? आपका ओवम, यहाँ पर जो ये ओव्यूलेशन हो रहा है, एज यू रिमेम्बर दिस is not an ovum. Ovum नहीं था एक्चुअल में. This is what the secondary oocyte. Secondary oocyte at the arrested stage में था. Arrested at metaphase second. Okay. इसको जरा मिटा के दोबारा. ये जो बच्चों ओवम में यहाँ से ओव्यूलेशन हो रहा है, दिस इज व्हाट? द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन में आपको याद होगा सेकेंडरी oocyte आपका क्या हो रहा था? रिलीज हो रहा था. सेकेंडरी oocyte. ठीक है, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड स्टेट में था. अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड. अरेस्टेड स्टेज में था. दैट इज नॉट एन ओवम. अब ओवम कंसीडर कर लेते हैं, बोल देते हैं, बट एज यू नो दैट विदाउट कंप्लीटिंग द meiosis second we can't call that
सेल एंड ओवम, हम उसको नहीं बोल सकते क्योंकि मेटाफेज कंप्लीट ही हुआ है। अभी इसके बाद में जब आपका कंप्लीट होगा मियोसिस, उसके बाद आपको एक पोलर बॉडी भी मिलेगी, है ना। तो ठीक है, तो ये आपका रिलीज हुआ यहाँ से फेमरे की हेल्प से, आपके कहाँ पर एंटर कर गया, आपकी फैलोपियन ट्यूब में। अब बिकॉज दिस सेकेंडरी oocyte या ओवम इज नॉट मोटाइल, ठीक है, तो मोटाइल सेल इज व्हाट, स्पर्म। ओवम इज नॉट मोटाइल, मोटाइल नहीं है तो ये मूव कैसे करेगा, आपके एम्प्यूला तक कैसे पहुंचेगा। सो द आंसर इज द सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम की बच्चों जो एपिथेलियम है वो क्या है, सीलिएटेड है, सीलियास प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो सीलियास है ये सीलियरली मूवमेंट करेंगे, सीलियरी मूवमेंट करेंगे, बीट करेंगे, और इससे क्या करेंगे, आपके जो सेकेंडरी oocyte है उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, कहां पर, एम्प्यूला तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इतना ही है कि आपके जो ये मूवमेंट है, किस मूवमेंट से जो आपका oocyte है वो एम्प्यूला तक पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ आने के बाद उसको क्या होता है ना, आपका वेट करता है वो किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म का, ठीक है। अब स्पर्म की एंट्री कैसे होगी, देखो यही देख लेते हैं। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन में क्या होता है बच्चों, इंसेमिनेशन क्या है, द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटेलिया या फिर फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट। फीमेल का आपके क्या है, आपका जो जेनेटल ट्रैक्ट है, सॉरी, उसमें आपका क्या होगा, डिपोजिशन होना चाहिए किसका, स्पर्म का। अब डिपोजिशन कैसे होगा बच्चों, ये थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, ठीक है। कैसे होगा डिपोजिशन, विद द हेल्प ऑफ कोइटस या कॉपुलेशन, ठीक है। तो व्हाट इज कॉपुलेशन, द इंसर्शन ऑफ इंटरलाइजेशन ऑफ male external genitalia penis into the female body through the vagina. Vagina में enter करेगा and it ejaculates semen. Semen को female reproductive tract में क्या कर देगा, ejaculate कर देगा, क्या है, semen. semen में आपके क्या आए हैं बच्चों, क्या आए हैं भाई, आए हैं sperms. These are what, sperm. कैसे आ रहे हैं, डिपोजिशन कर रहा है with the help of penis. Penis internalize ejaculate semen in female reproductive tract. Female reproductive tract में क्या कर रहा है, पेनिस ने ejaculate कर दिया semen को, ठीक है, that is insemination. डिपोजिशन हो गया फीमेल ट्रैक्ट में। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो आपका ejaculation है कितना है। सिंगल टाइप में बच्चों जो ejaculation है, इजैकुलेशन है सेमेन का, दैट इज 3 to 4 ml, 3 to 4 ml होना चाहिए सेमेन. दिस सेमेन इज व्हाट 3 to 4 ml, and in this 3 to 4 ml how many sperms are present? 200 to 300 million sperms. ठीक है, सिंगल एजाकुलेशन इज 3 to 4. अब बच्चों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपका, जो सैटिया ने आपको बताई है एक लाइन इम्पोर्टेंट, वो क्या है? फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इस अमाउंट में से कितना स्पर्म का क्या है, कुछ रेशियो है जो आपकी एनसीईआरटी आपको बताती है, of which 60% of sperm must have normal shape and size. एक नॉर्मल फर्टाइल होने के लिए जो अमाउंट है स्पर्म का, उसमें से 60% के पास नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, एंड 40% ऑफ देम, और उनमें से 40% must have vigorous motility.
देखने वाले में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 60% जितना अमाउंट टोटल अमाउंट का स्पर्म है उसका 60% निकाल लिया। एक नॉर्मल फर्टाइल होने के लिए, फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या होता है, उस पूरे अमाउंट में से 60% का शेप और साइज नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंजेस आते हैं जिसमें शेप नहीं होता नॉर्मल, जिसमें क्या होगा साइज नहीं होता नॉर्मल, ठीक है। तो 60% का अगर फर्टाइल होना है उसको सिग्निफाई कर रहा है कि ये फर्टाइल है, उसके 60% एटलीस्ट 60% जो है वो नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए। उन 60% में से 40% के पास में विग्रेस मोटिलिटी होनी चाहिए। वो मोटाइल जो होता है ना, जो अपनी टेल को मूव करके जो क्या करता है, मोटिलिटी देता है स्पर्म को, दैट इज मोटिलिटी, उसकी मोटिलिटी विग्रेस होनी चाहिए। तब बोलेंगे आपकी क्या है, नॉर्मल फर्टाइल है। ये जो कंडीशंस है वो एटलीस्ट है, लीस्ट सर्टेन कंडीशंस नहीं है कि 60 ही 70 ही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। आपका 70 80 कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट 60 से कम नहीं होना चाहिए फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है। दिस इज व्हाट द इंसेमिनेशन एंड अराइवल ऑफ ओवा। ओवा यहाँ से आया सीलियरी एक्शन से, ठीक है। सीलिया से वो बस पड़ा हुआ ऐसे और सीलिया उसको ढकेल रहे हैं, है ना। तो ढकेलते ढकेलते कहाँ, एम्प्यूला तक लिया है। नाउ एम्प्यूला में वो वेट कर रहा है किसका, स्पर्म का। इजैकुलेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कपुलेशन। दिस इज व्हाट द कपुलेशन। जिसको कोइटस भी कहते हैं, द इंटरनलाइजेशन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इनटू द फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज कपुलेशन कोइटस। नाउ ये कपुलेशन और कोइटस किसको रिजल्ट कर रहा है, इजैकुलेशन। ये इजैकुलेट किया, इजैकुलेट के बाद में ये जो डिपोजिशन है दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन एक अमाउंट में कितना, एक बार में कितना, एक इजैकुलेशन में कितना अमाउंट ऑफ सेमेन इंटरनलाइज किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है फीमेल बॉडी में, दैट इज 3 to 4 ml, जिसमें कि आपका 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, जो कि सारे यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, मार दिए जाएंगे, यहाँ पर उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर क्या है, मर जाएंगे, क्योंकि जो आपका स्पर्म है वो एसिडिक मीडियम को नहीं आपका क्या करता है, झेल पाता है। तो आपका जो फीमेल बॉडी का स्लाइटली एसिडिक होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म की डेथ होगी, बहुत सारे, बिकॉज ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो आपका जो स्पर्म है यहाँ मार दिए जा रहे हैं। और दूसरा आपका क्या है, जो फीमेल बॉडी की मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस कौन सी होती है बच्चों, WBCs है आपकी। जब मैंने आपको पढ़ाया था, मोनोसाइट्स बताए थे, वही आपके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस करेंगे, खा के पचाएंगे। तो आपको फीमेल बॉडी जैसे ही देखेगी स्पर्म आ रहे हैं, आप स्पर्म तो क्या है फीमेल बॉडी में नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में नहीं बनती है, हमारी बॉडी उसको ऐसे फॉरेन मटेरियल कंसीडर करती है। सो दिस इज द फॉरेन मॉलिक्यूल फॉर द फीमेल बॉडी। तो क्या होती है, मैक्रोफेजेस इनके ऊपर काम करेंगे, तो इनका सबका खात्मा हो जाएगा। तो यहाँ जब पहुंचेंगे वो 200-300 क्या बोलते हैं आपके स्पर्म पहुंचेंगे, ठीक है। देख रहे हो कितना मिलियन से कहां पर आ गए, ठीक है। तो यह यहाँ पर उनकी डेथ भी हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका अराइवल ऑफ इंसेमिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, इसके बाद मोटिलिटी। मोटिलिटी यही देखो बच्चों, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, बनाना नहीं है, तो यही देख लेते हैं हम लोग। मोटिलिटी में क्या हो रहा है, जो स्पर्म है देखो, इसके साथ में आपका क्या आ रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ था, आपकी किसी एक कोई चीज थी ना ऐसी जिसमें आपका फ्रक्टोज था, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड है ना, उसमें एक इस तरीके का मॉलिक्यूल के नाम भी रखा था प्रोस्टाग्लैंडिन। वो क्या करते हैं, आपकी जो ये लेयर्स हैं यहाँ पर मसल्स लेयर्स, इनको क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं फॉर द कंट्रैक्शन, फॉर द मूवमेंट। इनकी वजह से ये मूवमेंट होता है, मतलब कि मेल जो अपने साथ में सीमेंट के साथ में फ्लूइड ला रहा है वो भी हेल्प कर रहा है यूट्रस की मूवमेंट में। बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट ये क्या है आपके फ्लो कर रहे हैं। दूसरी चीज मोटिलिटी में कौन हेल्प करता है, पहली चीज हो गई प्रोस्टाग्लैंडिन। सेकेंड थिंग इज व्हाट, दिस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल reproductive tract provides liquid provide करेगी so that sperm can swim in that liquid medium। तो आपकी फीमेल बॉडी इसको प्रोवाइड कर रही है लिक्विड मीडियम, जिससे कि आपके लिक्विड प्रोवाइड कर रही है जिससे कि स्विम करके जा सके, ठीक है। दूसरी चीज प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपके सेमेन में प्रेजेंट है, आपके क्या है ग्लैंड का सिक्रीशन है,
सेमेन के साथ में आया है, मेल के पार्ट के साथ में आया है, ठीक है, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा कंट्रैक्शन में, तो वो भी अब मोटिलिटी में हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो हो गई बात मोटिलिटी की भी। तो यहाँ पर हमारी मोटिलिटी की भी बात हो गई ये वाली, अराइवल ऑफ ओवम, इंसेमिनेशन एंड मोटिलिटी। नाउ विल टॉक अबाउट द कैपेसिटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट मी रब दिस। हो गया, यहाँ पर आ जाएगा, चलो रब ही कर देते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं कैपेसिटेशन। मतलब स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बनाना इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि सबसे पहले रिमूवल होता है किसका बच्चों, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल वेसिकल from the head of sperm। गंदी राइटिंग आई है। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, क्रोमोसोम के पास में वेसिकल्स है कोलेस्ट्रॉल की, उसका रिमूवल हो रहा है। फिर आपका किसका रिमूवल होता है, रिमूवल होता है ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल, मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द एरिया ऑफ एक्रोसोम, from the acrosome, ठीक है। एक्रोसोम हेड पे ही क्या है, मेम्ब्रेन है, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या है, हेड वाले एरिया को साफ करा जा रहा है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हटाया जा रहा है, मेम्ब्रेन की थिनिंग हो रही है। ये सब क्या कर रहे हैं, वीकेन कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, वीकेन द मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम की मेम्ब्रेन को वीक कर दिया। अब वीक करने का मतलब क्या है कि ये जल्दी बहुत इजीली क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी। तो ये आपका कैपेसिटेशन होता है। एक और चीज होती है आपके कैल्शियम वेव, जो कैल्शियम है उसको ये वेव को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट कैल्शियम इंटरलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, जो मोटिलिटी है विल इंक्रीज, मोटिलिटी इंक्रीज कर दी गई, ठीक है। मोटिलिटी इंक्रीज करके साथ साथ में मेम्ब्रेन जो है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी, बिकॉज ऑफ दीज कैल्शियम आयंस, परमिएबिलिटी ऑफ एक्रोसोम, या मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है, increases the permeability of membrane of acrosome, एक्रोसोम की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा दी, मोटिलिटी उसको इंक्रीज कर दी, स्लो से रैपिड हो गई, अब मोटाइल हो गया, बहुत तेजी से मोटिलिटी के साथ में क्या करेगा, मतलब कैल्शियम आयन जैसे मिला स्पर्म को तो क्या करेगा, वो उसकी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये तीन चीजें, या फिर इसके साथ और भी होता है, इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं एक्रोसोम में, उसको ये स्पर्म में उसको भी रिमूव करता है, उसको डिसॉल्व करते हैं, आपकी कैपेसिटेशन प्रोसेस में ही आता है वो भी। तो ये सारी चीजें क्या है, कैपेबल बना रहे हैं स्पर्म को ताकि वो इजीली फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। दिस इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कहाँ हो रहा है बच्चों, इन फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो रहा है कैपेसिटेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो गया कैपेसिटेशन। नाउ द लास्ट थिंग इज व्हाट, द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में बहुत कुछ है, तो लेट मी रब दिस होल थिंग so that I can just draw the diagram as well as this explanation here. So let me rub and we'll start fusion of gametes. So let's see the last phase of fertilization, या फिर मेनली वही है फर्टिलाइजेशन, उसके साथ में तो सब हेल्पिंग थे। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑफ ऑल द गैमीट, जो कि है आपका फीमेल पार्ट, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस इज व्हाट, द ओवम, ठीक है, दिस इज द ओवम, वी हैव द न्यूक्लियस हियर, this is the nucleus which is arrested in metaphase second stage, ठीक है, still it is in arresting stage. Now we have the
zona plasuda, right? We have the zona plasuda. ये लेयर हो गई बच्चों zona plasuda की, the green color one. And एक्सटर्नल साइड में आपका क्या प्रेजेंट थे, आपके क्या प्रेजेंट थे बच्चों, कोरोना रेडिएटा, ग्रेन्युलर सेल्स जो आ गई थी साथ में, फॉलिकल सेल्स, उनको क्या नाम दिया गया था, आपके कोरोना रेडिएटा। ठीक है, एक लेयर नहीं थी, बहुत सारी लेयर्स थी। राइट, तो यहां पर भी आपका कुछ एक चीज प्रेजेंट थी, दैट इज, इसको इससे बनाएंगे, रेड से बना देते हैं। ये क्या प्रेजेंट है बच्चों, हाइलुरोनिक एसिड, जिसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कहा गया था। हाइलुरोनिक एसिड या म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेटेड क्या आ रहा है आपका, this is what the capacitated sperm, right? तो फर्स्टली व्हाट विल द स्पर्म डू, या फिर कहां पे जाके एनकाउंटर करेगा, द आउटर लेयर। आउटर लेयर इज ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये लेयर किसकी है बेटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ओके, दिस सीमेंटिंग मॉलिक्यूल इज व्हाट, हाइलुरोनिक एसिड, या फिर इसको पॉलीसेकेराइड भी कहा था। तो अब देखो हम इन दोनों, सबसे पहले स्पर्म को इन दोनों को तोड़ना होगा। ठीक है, तो स्पर्म लाइसिन जो आपका एक्रोसोम है, दिस इज हैविंग अ नंबर ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम्स, राइट? सो इट सिक्रीट सम काइंड ऑफ स्पर्म लाइसिन। ये सिक्रीट करेगा स्पर्म लाइसिन विच एक्ट ऑन बोथ ऑफ दीज। इन दोनों पे एक्ट करेंगे, सीमेंटिंग मॉलिक्यूल तोड़ तोड़ के अंदर जाएगा और जो भी बीच में आपका आएगा क्या, कोरोना रेडिएटा के सेल्स, उसको भी ये रप्चर करेगा, राइट? ठीक है, तो स्पर्म लाइसिन में आपके इनको हाइड्रोलाइज करने का एंजाइम और इनको क्या है, रिमूव डिजेनरेट करने का एंजाइम, दोनों ही एंजाइम होंगे इस स्पर्म लाइसिन एंजाइम में। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं डी हाइलोरिनिडेज। ठीक है, ये इस सीमेंटिंग मॉलिक्यूल को हटाएगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इस तरीके के दो एंजाइम प्रेजेंट है स्पर्म लाइसिन में, जिसने इसको क्या करा, इनको आपके रास्ता बनाया, इनको डिजेनरेट करके आपके स्पर्म के लिए क्या करा, एक रास्ता बनाया। ठीक है, इन्होंने वर्क किया इस एरिया पे। ठीक है, अब आपके पास रास्ता साफ है स्पर्म के लिए, स्पर्म आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ा। अब इनके पास है दूसरी लेयर, दैट इज जोना प्लेसिडा। ठीक है, अब जोना प्लेसिडा को कैसे क्रॉस करेंगे बच्चों, जोना प्लेसिडा के पास आपके रिसेप्टर्स होते हैं। These are having receptors. This membrane is having receptors ZP1, ZP2, ZP3। ये स्पेशीज क्या है, आपके कंपैटिबिलिटी शो करते हैं। स्पीशीज टू स्पीशीज क्या है, कंपैटिबिलिटी शो कर रहे हैं। एक ही स्पीशीज का स्पर्म उसको ही फर्टिलाइज कर रहा है, हाउ, कुछ ना कुछ तो कंपैटिबिलिटी फैक्टर होगा। सो दिस प्रेजेंट इन जोना पेलिसिडा इन द फॉर्म ऑफ दीज रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर को आपको, और जो आपका क्या है स्पर्म है, इसमें भी आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, जोना पेलिसिडा में रिसेप्टर है। तो क्या करेंगे, जो स्पर्म है, जो जोना पेलिसिडा है, इसके रिसेप्टर को क्या कहते हैं, कंबाइनली फर्टिलाइजर। ठीक है, ये प्रोटीन फर्टिलाइजेशन है।
इनके ऊपर भी क्या होंगे, बाइंडिंग मॉलिक्यूल, वही प्रोटीन होगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा स्पर्म के पास, दैट इज एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है। एंटी फर्टिलाइजिंग इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो जोना प्लसीडा में एंटर किया उसने, ठीक है, कर दिया, मतलब जोना ने उसको अलाउ कर दिया कि हाँ भाई जा। अब आपके पास स्पर्म के पास क्या है, लास्ट सरफेस बचा है जो कि है आपके oocyte का। अब बच्चों ये जो oocyte है, दिस इज इन द स्टेज ऑफ, दिस इज व्हाट, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, राइट, सेकेंडरी oocyte है, अरेस्टेड स्टेज में है एट मेटाफेज सेकेंड, राइट, ओवम नहीं बना अभी और अभी डिवीजन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्पर्म आ गया। जैसे ही स्पर्म, अब अच्छा यहाँ पर भी इनके क्या होते हैं, आपके फर्टिलाइजिंग कोन्स प्रेजेंट होते हैं, किस पे, आपके ओवम की जो ऊलमा है उस पे क्या होते हैं, आपके फर्टिलाइजिंग कोन्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं कोन्स पे आके क्या होते हैं, जैसे ही आपके इन कोन्स पे आके दीज आर व्हाट, द फर्टिलाइजिंग कोन्स, फर्टिलाइजेशन कोन, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या करेगा, स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही इसको कांटेक्ट होगा या फिर कांटेक्ट होगा स्पर्म का किसके साथ, ओवा के साथ, उस आपने एक चीज सुनी होगी ना कि सिंगल ओवा कैन फर्टिलाइज ओनली सिंगल ओवम, दो ओवम फर्टिलाइज नहीं करती। जैसे एक ओवम मैंने फर्टिलाइज कर दिया, उसके बाद ये एग जो होता है एक ब्लॉकिंग क्या कहते हैं रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से दूसरा स्पर्म भले आ जाए पर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा इसको ओवा को, ठीक है। वो क्या प्रोसेस होती है, इसको रब करते हैं, ये तो हो गई रप्चर है ना। तो क्या होता है, जैसे ही इनका कांटेक्ट हुआ किसका, स्पर्म के हेड का इस पे oocyte के मेम्ब्रेन पे, oolemma पे, ठीक है, oolemma वाज द मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। oolemma पे जैसे ही इनका कांटेक्ट हुआ, दो तरीके की रिएक्शंस होंगी बच्चों, एक होगी और दूसरी होगी जोनल या फिर जोना रिएक्शन। ये दो तरीके की रिएक्शंस परफॉर्म की जाएंगी टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। अच्छा, इसको बोलते क्या है, व्हेन सिंगल द फिनोमेनन एट व्हिच द सिंगल स्पर्म फर्टिलाइजेस द सिंगल ओवम इज कॉल्ड मोनोस्पर्मी। इसको क्या कहते हैं, मोनोस्पर्मी। व्हेन सिंगल one sperm fertilizes single ovum, ये जो फिनोमेनन है दैट इज मोनोस्पर्मी। इफ more than two sperms fertilizes single ovum, then this condition is called as, this phenomenon is called polyspermy. So there is some reactions inside the female body of humans which prevent this polyspermy. So ये रिएक्शन क्या है, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को क्या कर रहे हैं, ये प्रिवेंट कर रहे हैं। अब ये कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, देखो कॉर्टिकल से क्या याद आना चाहिए आपको, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ये कॉर्टिकल रीजन में यहाँ पे ग्रेन्यूल्स थे, क्या थे, कुछ ग्रेन्यूल्स थे, मैंने जिनका नाम बताया था आपको, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल या फिर अपर साइड ऑफ द या आउटर साइड ऑफ द oocyte, oocyte के आउटर साइड पे प्रेजेंट थी, ठीक है। ये क्या करती हैं बच्चों, जैसे ही टच किया, ठीक है, यहाँ पर फ्यूजन हुआ, इनके मेम्ब्रेन्स में फ्यूजन हो गया, स्पर्म का कंटेंट जो है वो पूरा कहाँ आ जाएगा, मेल फीमेल बॉडी के अंदर। दिस इज द न्यूक्लियस, सपोज दैट इज अ मेल प्रोन्यूक्लियस, यू कैन कंसीडर दैट, ठीक है। स्पर्म पूरा नहीं आया, उसने अपना कंटेंट भेजा है, तो जो कंटेंट अंदर इंटरलाइज किया है वो किसका था, हेड का, नेक का और आपके किसका, मिडिल पीस का। बचा क्या आपका, टेल का कुछ नहीं है, टेल बाहर आ जाती है, बाकी सबका कंटेंट क्या हो जाता है, अंदर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है थ्रू द स्पर्म।
जैसे ही ये अंदर एंटर हुआ तो आपका क्या होता है, जैसे टच करने से भी रिएक्शन होती है आपके, जो सबसे पहले क्या होता है, इसके जैसे ही टच हुआ सबसे पहले रिएक्शन ये होती है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करती है, ये आपके जो कॉर्टिकल है ये बाहर जाते हैं, इनका एक्सट्रूजन होता है। बिकॉज ऑफ दैट ये जो लेयर है, ये लेयर है डीपोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। ये क्या कर देते हैं, ऊ लेमा को डीपोलराइज कर देते हैं। ऊ लेमा, जिसको और उसको आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जब ये बन जाती है, इट डज नॉट अलाउ, इट does not allow more sperm to fertilize ovum। इस फर्टिलाइज को फिर दूसरे जो स्पर्म आ रहे हैं उनको फर्टिलाइज करने से रोक देगा। कौन से, ये ग्रेन्यूल्स हेल्प कर रहे हैं डीपोलराइज करने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉर्टिकल रिएक्शन। उसके बाद बच्चों क्या है आपकी, क्या है आपके जोना। जोना क्या कर रहे हैं, ये तो तुरंत हो गया आपका। कॉर्टिकल वाला क्या होता है, फास्ट है। ये जो ब्लॉकेज है वो फास्ट ब्लॉकेज है, ठीक है। फास्ट क्यों है, क्योंकि टच करते ही हो रहा है। दूसरा ब्लॉकेज होता है वो कंपैरेटिव इसके क्या है, स्लो है। स्लो ब्लॉकेज क्या है, जब इसका मटेरियल अंदर आ चुका है, जो मेल गामीट अंदर आ गया है, ये क्या करता है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरलाइजेशन ऑफ द मेल गामीट इनसाइड द फीमेल ओवम, द फीमेल ओवम प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ केमिकल्स। इनके प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होते हैं, जोनल रिएक्शन। ओवम क्या करते हैं, रिलीजेस some chemicals which destroy the receptors at zona pellucida for sperms। जोना पेल्यूसिडा पे रिसेप्टर थे Z1, Z2, Z3, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए Z3 है, ठीक है। तो वो रिसेप्टर्स क्या थे, उसको रिसीव कर लेते हैं, इसको स्पर्म को। अगर वो होंगे ही नहीं तो रिसीव ही नहीं किया जाएगा स्पर्म। तो दूसरी रिएक्शन यही होती है, ये जो इसकी इंटरलाइजेशन है न्यूक्लियस का, ये क्या करती है, ओवा को एक केमिकल रिलीज करने के लिए इनिशिएट कर देती है। दैट केमिकल गो आउट एंड डिस्ट्रॉय ऑल द रिसेप्टर्स ऑन जोना पेल्यूसिडा। दिस रिएक्शन इज जोना रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन, दीज बोथ रिएक्शंस आर यूज टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी के लिए दो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। ब्लॉकेज के लिए, एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, दूसरे स्पर्म ना फर्टिलाइज कर सके, उस कंडीशन को रोकने के लिए, वो कंडीशन क्या है, पॉलीस्पर्मी। इसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू रिएक्शंस इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन एंड जोनल रिएक्शन। आई होप दिस क्लियर्स हियर कि कैसे ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आ चुका है आपका गैमीट, ठीक है। अब क्या होगा, इनके आने के बाद, ठीक है, ये चीज आई होप क्लियर हो गई हो। इसको रब कर दूंगा साइड से और फिर रिएक्शन देख लेते हैं। मेन चीज जिसके लिए सब पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है बच्चों, जब ये एंटर करेगा तो ये जो आपकी अरेस्टेड स्टेज है, ये क्या कर देगी, इसको हटाकर, ये किसकी वजह से अरेस्टेड थी, क्योंकि मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर यहाँ पर सीक्रेट हो रहा था। मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से मेटाफेज पे अटक गई आपका क्या है, oogenesis। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर रिलीज होने की वजह से एनाफेज जो होता है, मेटाफेज जो होता है वो एना में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या है, मियोसिस कंप्लीट। मियोसिस कंप्लीट कब हुई, जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ। दैट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन मियोसिस कंप्लीट होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फिर आफ्टर द इंटरलाइजेशन ऑफ मेल प्रोनिक्लाई इनटू द ओवम, आपका मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी सेकेंडरी oocyte में। अब ये क्या हुआ, इसकी वजह से आपके दो न्यूक्लियर बन जाएंगे ना, एक तो होता है, एक ही हो जाएगा, एक इधर बन जाएगी, जिसको बोलेंगे आप पोलर बॉडी, ठीक है। ये था पेरीवेटेलाइन कैविटी, है ना। पेरीवेटेलाइन कैविटी बन जाएगी जोना के और इनके रूबुला के बीच में, जहां पर पोलर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 2 और 1
कैसे होती है, कंफ्यूजन होगी भी बताऊंगी, ठीक है। ये पोलर बॉडीज बन गई, ठीक है, ये डिजनरेट कर दी जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बनने के बाद ना डिजनरेट कर जाएंगे। और ये बनी कैसे बच्चों, बिकॉज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट में बनी है एक पोलर बॉडी, मियोसिस सेकंड में एक पोलर बॉडी बनी, ठीक है। अब आप बोलोगे 3 सेल्स तो बन रही है, चौथी कहां गई, मियोसिस में तो 4 सेल्स होती है ना। देखो जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो आपके पास 2 सेल्स आई, द प्राइमरी oocyte एंड द पोलर बॉडी। अब इन दोनों के बीच में जब मियोसिस सेकंड होनी चाहिए तो दोनों का डिवीजन में इन्वॉल्व होते तब आपके पास 4 सेल्स होती है। बट हियर यू कैन सी दैट द पोलर बॉडी आपकी क्या है, डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, वो डिजनरेट हो रही है। तो वो अगर आगे वाले फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है, वो आगे जाके क्या है, डिवाइड ही नहीं कर रही है, तो वो तो सिंगल सेल रहेगी। बट जो प्राइमरी oocyte है उस मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोडक्ट था, एक जो सेल थी वो फर्दर मियोसिस सेकंड में इन्वॉल्व हो रही है, तो इससे 2 बन जाएगी। तो 3 सेल्स हैं एट लास्ट आपके पास, 2 पोलर बॉडी और सिंगल सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte अब जाके फाइनली ओवम में बन गया आपका आफ्टर द मियोसिस फर्स्ट। ये हो गया आपका क्या, ओवम। इनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन और बन जाएगा क्या बच्चों, क्या बनेगा, जाइगोट। दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज 2n, डिप्लॉयड बन गया, ठीक है। जाइगोट इज फॉर्म्ड नाउ। सो दिस इज ऑल इन द फर्टिलाइजेशन एंड अब क्लास काफी लंबी हो जाएगा लेक्चर। इम्प्लांटेशन पढ़ना है इसका, क्लीवेज पढ़ना है पहले। क्लीवेज जो होंगे आपके जाइगोट में, अभी जाइगोट है, एम्प्यूला में है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है बच्चों, दिस टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला। लेकिन एम्ब्रियो में कोई ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, कहाँ होता है, यूट्रस में। यूट्रस तक जाने तक का सफर जो होगा उसके बीच में ऐसा नहीं होगा बस जाइगोट बन गया, बस ऐसे करते हुए पहुंच गया वो नाचते गाते हुए। इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे क्लीवेजेस होंगे, डिविजन्स इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट स्टेजेस आएंगी और एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके आपका यूट्रस में जाके ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा। सो क्लीवेज, इम्प्लांटेशन और सेक्स ऑफ द बेबी, ये सब की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल और पढ़ते रहिए।